یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ 4 مقابلے ہو چکے، 4 ٹیمیں آگے پہنچ چکی، آج 5واں مقابلہ ہے اور آج پنجاب ہی کی دونوں ٹیمیں ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، مگر امید ہے کہ اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ اس سلسلے میں گھر بیٹھے ہمیں بہت سارا علم دین مل سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، ہو سکے تو پورا سلسلہ دیکھیں، ہو سکے تو قلم اور کاغذ ساتھ رکھیں، بہت ساری نئی معلومات بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیے، منچ کی زینت کو بڑھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ چکی ہیں۔ ہم نے آج 5واں مقابلہ شروع کرنا ہے، مگر جو چوتھا مقابلہ تھا 3 ٹیموں کے درمیان تھا اور ان 3 ٹیموں میں سے ایک ٹیم آگے بڑھ گئی، 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوئیں۔ آئیے ناظرین پہلے اس مقابلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج چوتھا سلسلہ ہے جس دسترخوان پر سبزی موجود ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ سیدی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس دسترخوان پر سبزی موجود ہوتی ہے اور وہاں پر اللہ پاک کے رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور سبزی کھانا سنت مبارکہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 24 نمبر ہیں منڈی یزمان، 25 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے اور 22 نمبر پر ہیں میرپور خاص۔ تینوں ٹیمیں بہت قریب ہیں، کدھر بھی مقابلہ جا سکتا ہے۔ سید الشہداء سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، غلط۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کا نام شبیر بھی رکھا تھا، غلط۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، صحیح۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام نہیں ہے، غلط۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ صحیح۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ جواب شاہ والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جناب دباب شاہ والے آگے بڑھ گئے اور 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوئیں۔ آج دائیں طرف چکوال کے اسلامی بھائی ہیں اور میری بائیں طرف اوکاڑا کے اسلامی بھائی ہیں۔ اوکاڑا کی ٹیم تو کئی ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں شامل رہی ہے، مگر شاید چکوال والے پہلی بار یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک آدھ بار آئے ہوں۔ آئیے ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ چکوال والے بھائی اپنے نام بھی بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سجیل احمد، والد صاحب کا نام محمد امیر ہے اور میں چکوال شہر کا رہائشی ہوں، اور ابھی چند ماہ پہلے میں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن مکمل کیا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آنے کا کیسے جی چاہا یا کیسے ذہن بنا؟ بس لاسٹ ٹائم آڈیشن ہوئے تھے اسلام آباد، تو کچھ علت کی وجہ سے پاؤں خراب ہو گیا تو نہیں جا سکا، تیاری کی تھی آڈیشن کی، تو اس بار پھر شہر میں۔ اچھا، اس بار آپ کے شہر میں ہی آ گئی آڈیشن، ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک، ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحادی، والد کا نام راشد محمود، اور میں جامعۃ المدینہ گجر خان میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. اور چکوال کے آڈیشن میں سے آپ سلیکٹ ہو گئے. ماشاءاللہ. جی تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہ زیب ہے، والد کا نام محمد آصف اتاری ہے، ماشاءاللہ. اور میں چکوال شہر کا رہائشی ہوں، اور میری ٹیلر کی اپنی شاپ ہے. ارے واہ، ٹیلر کی شاپ ہے اور ذہنی آزمائش میں سلیکٹ بھی ہو گئے. تو کیسے ذہن بنا آپ کا ذہنی آزمائش میں آنے کا؟ دیکھتا تھا سلسلے ذہنی آزمائش کا، ٹھیک ہے. تو ادھر سے بڑا شوق تھا، تو اور تیاری کر کے آ گئے اور سلیکٹ بھی ہو گئے. اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کراچی؟ الحمدللہ اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. آئیے دیکھتے ہیں ناظرین چکوال کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے. علم نور ہے، 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 علم نور ہے. مدنی چینل کی ٹیم مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی آج چکوال پہنچی ہے، اور آج ہم عاشقان رسول سے ذہنی آزمائش کا آڈیشن لیں گے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. شملہ کس طرف ہونا چاہیے؟ شملہ پیٹھ کیجیے، دونوں شانوں کے درمیان ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اختیار کرو، یہ فرشتوں کا شعار ہے، اور ان کا شملہ پیٹھ پیچھے رکھو. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. ناظرین بعض اوقات آڈیشن کے جب مناظر دکھائے جاتے ہیں تو ایک یا دو سوال درست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے اسلام میں. تو ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہوگا کہ شاید 2 ہی سوال کا جواب دیا اور سلیکٹ کر لیا گیا. تو ایسا نہیں، پہلے ان کے تحریری امتحان ہوتے ہیں اور بعض اوقات کئی 100 اسلامی بھائیوں میں سے چند لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں فائنل انٹرویو کے لیے، اور اس کے بعد ان سے کئی سوالات ہوتے ہیں، اشعار سنے جاتے ہیں، ان کی ذہانت، ان کی حاضر جوابی، ان کے تلفظ اور بہت ساری چیزوں کانفیڈنس وغیرہ کو دیکھ کر سلیکشن ہوتی ہے. تو چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم تو آپ کو بہت چھوٹا سا ایک خلاصہ بتاتے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے ان کی کافی تیاری ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں میں یہ سلیکٹ ہو کر یہاں تک پہنچتے ہیں. چلتے ہیں ہم اب اوکاڑا والوں کے پاس، تعارف پیش کریں گے اپنا، بتائیں گے کیا مصروفیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مذکر منور اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام منور علی فریدی ہے. میں اوکاڑا شہر کا رہائشی ہوں، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا کے 5th ایئر کا طالب علم. ماشاءاللہ. آپ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، کون سے سیزن میں آئے تھے؟ جی پچھلے سال گجرانوالہ کی ٹیم میں سے. کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم کوارٹر فائنل تک گئے. کوارٹر فائنل تک گئے تھے. جی جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام لیاقت علی اتاری ہے. میرا تعلق پنجاب کے شہر اوکاڑا سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لاسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، اسکول کی طرف سے BA کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد ثاقب رضا تاریخ ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام حسین ہے، اور میں پنجاب کے شہر اوکاڑا کا رہائشی ہوں، اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. اوکاڑا کے جناب جامعۃ المدینہ اور وہاں کے جو ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا جذبہ ہے، میرا جب بھی جانا ہوا ہے بعض اوقات یہ حیران کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے اوکاڑا میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں؟ تقریباً 500 سے زائد ہے. جی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ یہ ایک جامعہ میں 500 سے زیادہ ہے. صرف ایک جامعۃ المدینہ، ایک ایسا دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ اوکاڑا میں جہاں مور دین 500 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور پورے اوکاڑا میں درس نظامی کرنے کا جو جذبہ ہے، علم دین سیکھنے کا جو جذبہ ہے، اٹس امیزنگ ماشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں اوکاڑا کی ٹیم تیاری کر کے کیسی آئی ہے. کچھ مناظر آپ کو اس کے آڈیشن کے دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 14 کی آڈیشن ٹیم آڈیشن لینے پہنچ چکی ہے پنجاب کے شہر اوکاڑا میں. علم نور ہے، 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 علم نور ہے. خطبے کے
वक्त बातें करने का क्या हुक्म? अल्लामा अलाउद्दीन अस्कफी रहमा फरमाते हैं खुतबे के वक्त कलाम करना, बातें करना, नेकी की बात बताना, आता के सलाम का जवाब देना हराम है। ए मुद्दईओ खाक को तुम खाक ना समझे, इस खाक में मदफून शहबत हा है हमारा। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। दोनों टीमों का तारुफ भी हो गया। आपको बताते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। नाज़रीन, एक नया सेगमेंट आज हमने मुतारिफ करवाया है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, आज कुरान की बातें होंगी, मगर कुरान से शान मुस्तफ़ा सुनेंगे, ईमान को ताज़ा करेंगे, इश्क रसूल को बढ़ाएंगे। बहुत कमाल का सेगमेंट है। इसके बाद जाने और पहचाने, फिर सबसे पहले और आखिरी सेगमेंट जो उमूमन फैसला कर दिया करता है, सफ़र है मगर अकेले। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। चकवाल वालों से सवाल करेंगे, गुनाहों की बीमारी दूर करने का आसान और मुख्तसर वजीफा कौन सा है? वाकई ये तो हम सब चाहते हैं कि गुनाहों की बीमारी दूर हो जाए, तो आइए उसका वजीफा आज ले जाइए। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बरु 7 बार अव्वल आखिर दुरूद, या बरु 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, या बरु 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह गुनाहों की बीमारी दूर हो जाएगी। या बर्रो 7 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, अपने दिल पर दम कर लें ये पढ़ने के बाद, और ये दिन में एक ही बार अमल करना है, तो इंशाअल्लाह गुनाहों की बीमारी यानी गुनाहों की आदत से छुटकारा मिलेगा। इतना आसान अमल है, तो मैं तो कहता हूँ आप आइए सारे मिलकर कर ही लेते हैं हाथों हाथ, और ताकि याद भी रह जाए। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अपने बाईं तरफ दिल पर हाथ रख रहे हैं, या बर्रो या बर्रो या बर्रो या बर्रो या बर्रो या बर्रो या बर्रो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अपने दिल पर हाथ तो रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल मैंने कहा कि इस तरफ है, तो यहाँ दम कर लें और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों को उजियाला कर दे, गुनाहों का मैल दूर हो जाए और नेकियों की आदत पड़ जाए। चलें जनाब, ये है ज़हनी आजमाइश, वज़ाइफ भी मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ओकाड़ा वालों की बारी है, बच्चों की हिफाजत का कोई वजीफ़ा बताएं। या हाफिज़ो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़कर बच्चों पर दम कर दें, इंशाअल्लाह हिफाजत का इन्हिसार मिल जाएगा और बच्चे गवाह होने से महफूज रहेंगे। बच्चों की हिफाजत का वजीफ़ा यह है कि अव्वल व आखिर 1 बार दुरूद शरीफ और 11 बार या हाफिज़ो या हफीज़ो पढ़कर अगर बच्चों पर दम कर दिया जाए तो हिफाजत का हिसार मिल जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कोई इन्हें इग़वा नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छा है कि अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले, मदरसे जाने से पहले, कहीं भी भेज रहे हैं तो ये वजीफ़ा करके उन्हें दम कर दिया करें। अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चकवाल वालों की बारी है। बवक्त शहादत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी? इमाम हुसैन की उम्र मुबारक ये शहादत के वक्त कितनी थी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वक्त शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल 5 माह 5 दिन थी। 56 साल 5 माह 5 दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक परों की तादाद कितनी है? फतावा रज़विया जिल्द 23 में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों की तादाद 600 है। 600 पर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बच्चे के कान में अजान न दी और एक दिन बाद उसका इंतकाल हो गया, क्या उसकी नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी? बच्चे के कान में अजान ना दी और एक दिन बाद उसका इंतकाल हो गया तो उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा जाएगा, नीज उसको गुस्ल और कफन भी दिया जाएगा। उसको गुस्ल और कफन भी दिया जाएगा, नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तोते को सलाम करना सिखाया गया, अब वो बार बार सलाम करता है, तो क्या उसका सलाम का जवाब भी देना होगा? चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब
اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. طوطے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. تین سوال ہو گئے ناظرین, تینوں کے صحیح جواب دیے ہیں, مگر اب ان سے وہ سوال کرنے ہیں جو ان کے سلیبس میں نہیں مگر کچھ آپشنز بھی ساتھ ہوں گے. چکوال والوں سے سوال ہے, رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ 3 آپشن ہیں, پنجاب, بلوچستان, سندھ. بات ہو رہی ہے رقبے کے لحاظ سے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ راستہ ہے علم کا 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بلوچستان. آپ کا کہنا ہے بلوچستان. کتنے اسلام میں سمجھتے ہیں ان کا جواب درست ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ارے آپ سب بھی, کون کون ان میں سے بلوچستان گیا ہے؟ اب ہاتھ اٹھائیں. گئے نہیں ہو پھر بھی کہتے ہو سب سے بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان غالباً آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے پاکستان کا, لیکن جی ہاں رقبے کے لحاظ سے یعنی لینڈ سائز جو ہے اس کی سب سے زیادہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. ایسا کون سا بر اعظم ہے جس میں کوئی ریگستان نہیں ہے؟ 3 آپشن ہے, ایشیا, یورپ, افریقہ. یہ ذرا سا مشکل لیکن بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ایک بر اعظم ایسا ہے کہ جس میں کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے, کوئی ریگستان نہیں ہے. آپشن ہے ایشیا, یورپ یا افریقہ. یورپ ہے. یورپ میں ریگستان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے, یعنی جواب یورپ ہے اور جواب بالکل درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اب باری ہے چکوال والوں کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے تک خلافت فرمائی؟ 3 آپشن ہیں, 2 سال, 3 ماہ 10 دن, 3 سال 2 ماہ 13 دن یا 1 سال 5 ماہ 15 دن. یہ راستہ 2 سال 3 ماہ, 3 سال 2 ماہ یا 1 سال 5 ماہ. آسان لفظوں میں. یہ جنتوں کا راستہ جی 2 سال 3 ماہ. کیسے آپ کو لگتا ہے یہ جواب درست ہے؟ پڑھا ہے کہیں یا ایسی بس؟ باقی لوگ جواب نہیں دے رہے تھے, آپ, میں نے دیکھ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے بس 2 سال بول دو. صحیح ہے ایسا؟ تو حوصلہ کیوں آ رہا تھا ایسا؟ مجھے لگ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے, کبھی کبھی صحیح لگ جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہاں اگر یہ غلط ہوتا تو زور سے لگتا پھر. ٹھیک ہے جناب, اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ نمبر 1 اناج کی تجارت, نمبر 2 زراعت, نمبر 3 کپڑوں کی تجارت. یا اناج کا کاروبار تھا, یا کھیتی باڑی کا کام تھا, یا کپڑوں کا کاروبار تھا؟ صدیق اکبر خلیفہ اول بھی تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے. جلدی کریں گے. سیدنا صدیق اکبر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. جی ہاں کپڑوں کی تجارت کرتے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی ہے, سارے جواب دونوں ٹیموں نے درست دیے ہیں. چلیں جناب, اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کیا سوال کیا جاتا ہے اور کون صحیح جواب دیتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ پہلی صدی کے مجدد کون ہے؟ پہلی صدی کے مجدد, دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا اتاری سرگودا سے. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. جی نہیں, امام شافعی نہیں تھے پہلی صدی کے. محمد نور المصطفیٰ اتاری حافظ آباد سے. جی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. نہیں جناب, یہ بھی نہیں تھے. یہ سوال آسان نہیں ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. جی چلیں آپ بھی کوشش کر لیں. محمد ساجد اتاری حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ, اور ان کو تحفے میں بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 425 حکایات بڑی کمال کی کتاب ہے ناظرین. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی, اور پہلی صدی کے مجدد ہیں. ان کے بارے میں ضرور پڑھیں, اور خاص طور پہ جو حکمران ہوتے ہیں یا جن کے پاس کچھ کمیٹی کی سربراہی ہوتی ہے, محلے کی سربراہی ہوتی ہے, خاندان کی سربراہی ہوتی ہے,
लीडर के लिए कमाल की किताब है। जनाब दूसरा सवाल भी कर लें। अच्छा जी, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। ये पीछे कुर्सियों पे जो बैठे हैं शख्सियात, उनको भी जवाब देने की इजाजत है। हजरत सवाल दोहराइएगा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। हाँ, ये तो बड़ा आसान सवाल है। चले देखें कौन बताता है। मुकद्दस रिश्ते तो हमने बहुत बयान कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको तोहफे में बड़ी प्यारी किताब दी जा रही है, रिसाला दिया जा रहा है, कबूल फरमाएं। माशाल्लाह। नाज़रीन चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ये रास्ता है इल्म का, दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। चकवाल वालों से सवाल करेंगे। पहला सवाल, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। क्या कमाल का कलाम है आला हज़रत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयदे आलम। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। ना रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न रखी गुल की जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। चटकता फिर कहा गुंचा कोई बागे रिसालत। चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बागे रिसालत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुनाह मगफूर दिल रोशन खुनक आंखें जिगर ठंडा। गुनाह मगफूर दिल रोशन खुनुक आंखें जिगर ठंडा। ताल अल्लाह माह तैबा आलम तेरी तलअत का। ताल अल्लाह माहे तैबा आलम तेरी तलअत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये राय क्या थी वहां से पलटने की ए नफ्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ए नफ्स। सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। ये मदीने से जुदाई का कलाम है। खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया। तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। अपने नफ्स से बात कर रहे हैं आला हज़रत के। ये कौन सी राय, तुम्हें किसने मशवरा दिया था मदीना छोड़कर आ गए। सितमगर तुमने तो उल्टी छुरी से हमें हलाल कर दिया कि मदीना छूट गया, अब उसकी याद ही सता रही है, उसकी बातें याद आ रही हैं। ना ही आते तो अच्छा था। कमाल का कलाम है जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा खूबसूरत शेर, मैं कहूँ तो बच्चे बच्चे को याद होगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। फिर से ये शुरू उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना रखा गैर से काम। मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम। ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम, छुड़ा के संगे दरे पाक सरे वबाल किया। छुड़ा के संगे दरे पाक सरे वबाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई। क्या बात है। अंधेर झट पड़े उठा कदम जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दंदानो लबो जुल्फ़ो रुखे शय की फिदाई है दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खतन फूल। है दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दंदानो लबो जुल्फ़ो रुखे शय की फिदाई है दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। लब फूल दहन फूल ज़ज़न फूल बदन फूल। सैयदी आला हजरत से हमें वैसे ही प्यार नहीं है। अब जरा इस शेर को समझो ना तो ईमान ताज़ा हो जाता है। आला हजरत ने इसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस के 4 बॉडी पार्ट्स का जिक्र किया। दंदान दांत, लब, ठीक है, मुबारक लब, फिर जुल्फ़ें और रुखे शय यानी आका का चेहरा, आका की जुल्फ़ें, आका के दांत मुबारक और आका के लब। ये कितने हसीन हैं। और इन चारों चीज़ों का ख़रीदार कौन है, तमन्नाई कौन है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, वर्ल्ड बेस्ट चीज़ों का जिक्र किया। आप फरमाते कि दंदान के मुकाबले में, दांत जो होते हैं ना, उसके मुकाबले में क्या लाए, दुर्र अदन। अदन के जो मोती है ना वो ख़रीदार हैं मेरे आका के दंदान मुबारक के। अच्छा, लब इतने खूबसूरत हैं कि फरमाते लाले यमन, यमन के जो जवाहरात हैं, जो हीरे हैं, मेरे आका के होंठ ऐसे हैं कि जो सुर्ख याकूत और लाले यमन है ना वो ख़रीदार है, वो तमन्नाई है आका के लबों की खैरात मिल जाए। अब फरमाते जो जुल्फ़ है मेरे आका की मुबारक जुल्फ़ जो है उसका ख़रीदार कौन है, ऐसी खुशबूदार जुल्फ़ें हैं, मुश्क खुतन कहते हैं। ये हिरनी के अंदर से एक ऐसी मुश्क की चीज़ निकलती है, थोड़ी तफसील है इसकी, कि मुश्क जो हिरनी के जिस्म से जो मुश्क की खुशबू निकलती है वो खुशबू जो है ख़रीदार है, तमन्नाई है कि आका की जुल्फ़ का सदका मिल जाए। और चेहरा अनवर का ख़रीदार कौन है, फरमाया गुल जो है, फूल जो है वो मेरे आका के चेहरे का तमन्नाई है। अब ज़रा इसका तकाबुल समझिए, जो थोड़ी सी बात को मेरी समझ जाएंगे ना कि 4 चीज़ों को पहले जिक्र करना, फिर 4 चीज़ों को बाद में जिक्र करना, और बताते हैं कि आका का हुस्न कैसा है। फरमाते दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फ़िदाई, मेरे आका की इन 4 चीज़ों के फ़िदा होने वाला कौन है, दुर्र अदन, लाले यमन, मुश्क खुतन और फूल। ऐसे मेरे आका हैं। जब भी तो हम कहते हैं जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब बारी है ओकाड़ा वालों की। वो हो के नहा हो गए ताबे रुखे शह में। बू हो के नेहा हो गए ताबे रुखे शाह में, लो बन गए हैं अब तो हसीनों का दहन फूल। लो बन गए हैं अब तो हसीनों का दहन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। अब बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है, तो चलें आला हजरत के अशार ही की बात चल रही है तो इसी कलाम का एक शेर सुन लेते हैं। आला हजरत फरमाते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। क्या खूबसूरत, ये भी नबी पाक की शान बयान की। अपनी आजिज़ी भी है कि हुज़ूर हमारी औकात तो ये कि हम तिनका भी नहीं हिला सकते। बात आला हज़रत की है तो आला हज़रत के शेर की मिसरी शरीफ भी पेश करेंगे। अरे वाह, बरेली की मिसरी आई है भाई, चले भाई जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار احمد کشمیر سے تشریف لے گئے. اچھا فرمائیے. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. ہدایت کے بخشش ان کو تحفے میں دی. بریلی کی مصری بھی آ گئی جناب. چلیں اب ایک کلام آج خاک والا کلام بھی، وہ بھی ون آف دا بیوٹیفل، مجھے بہت پسند ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت کا. اس میں مولا علی کی شان اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کی ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. کون پورا کرے گا شعر؟ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جی آپ سنائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعر کیا ہے؟ شعر بھول گئے. ٹھیک ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار ہے مولا ہے ہمارا. کیا بات ہے. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اب کون بتائے گا یہ کس لقب کی طرف اشارہ ہے؟ کیا لقب تھا؟ مل کے بتا دو. بو تراب. بو تراب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خاک والا، مٹی والا. تو کیا پیارا اشارہ دیا کہ خاک کو برا سمجھتے ہو. میرے مولا علی حیدر کرار کا لقب نبی پاک نے کیا دیا تھا؟ اس نے لقب خاک کس سے پایا؟ شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. آئیے انشاءاللہ اب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی تمہاری دور ہو اندھیر جھٹ پڑے. جناب دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں. مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن سے ضیاء دیتا ہے اور تارے سلام کہتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں اسما نور اطاریہ بات کر رہی ہوں. حاجی عبدالحبیب انکل سیزن 14 تک آپ کا سب سے یادگار ذہنی آزمائش کا پروگرام کون سا ہے؟ ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. ویسے یادگار اصل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ اس لیے یادگار ہو گئے کہ اس میں بڑی یوں سمجھیے کہ رکت تھی یا عشق رسول کی باتیں تھیں. اور ایک اگر میں اس کے شاید بہت ساری جہتیں بنیں گی نا دلچسپی کے لحاظ سے. کچھ پروگرام ایسے تھے جو انبلیویبل ہو گئے. مجھے یاد ہے ایک پروگرام تھا جس میں 18 نمبر سے ایک ٹیم ہار رہی تھی اور 20 نمبر کا سیگمنٹ تھا اور سارے ہی جواب انہوں نے دے دیے اور وہ مقابلہ جیت گئے. اور یہ ہمارے لیے بالکل حیران کن تھا. اسی طرح بہت سارے اس طرح کے معاملات تو ہوئے لیکن شاید ایک ذہنی آزمائش کا فائنل مجھے یاد ہے کہ جس میں شاید سب سے زیادہ عمرے کے ٹکٹ آئے تھے. ہم حیران ہو گئے تھے کہ میرا خیال ہے شاید 25-30 کالیں آ گئیں اور ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے، ٹیمز کے لیے. اور ماشاءاللہ مطلب مدینہ مدینہ ہو گیا تھا. تو یوں دیکھا جائے تو بہت سارے اس کے سیگمنٹس ہیں. کچھ سیگمنٹ اتنے اچھے ہو گئے کہ وہ مدتوں یاد رکھے گئے. ماں باپ کے حوالے سے کچھ گفتگو اچھی ہو گئی. ہمارے بابا شکر دن کی گفتگو بڑی اچھی ہو گئی. موبائل فون والا کلپ بڑا اچھا چل گیا. ایک ہمارے سلسلے میں ہمارے گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی آئے تھے. وہ بڑا کمال کا لوگوں کو امپیکٹ کیا. اب جو لاسٹ سیزن 13 کا فائنل تھا دیکھا جائے تو وہ بھی یوں یادگار تھا کہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہم پروگرام کرتے رہے اور 3-3.5 گھنٹے ہی بارش برستی رہی اور بڑی شدید بارش تھی. اور وہ ایک اسٹیڈیم میں کرنا تھا پھر اس کو ہال میں شفٹ کیا. تو ذہنی آزمائش سچی بات ہے کچھ نہ کچھ میٹھی میٹھی آزمائش ہمارے لیے بھی لا رہا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی یادیں ہیں ذہنی آزمائش کے ساتھ. کبھی اس پر بھی موقع ملا تو ذہنی آزمائش کے یادگار واقعات پر گفتگو کریں گے. ویسے بڑی اچھی کال تھی. جزاک اللہ. ایک اور کال دے دیں.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی اس پروگرام کے اندر ایک یہ سیگمنٹ رکھیں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی جس طرح حاجی مشتاق اطاری، مفتی فاروق اطاری اور حاجی زمزم رضا بھائی جتنے بھی اور امیر اہل سنت کے والدین، ان کے بارے میں بھی کچھ نا تھوڑا سا پروگرام کے اندر سیگمنٹ رکھے، ان کی پہلوات پر بھی کچھ بات ہو تاکہ آنے والے لوگوں کو کے بارے میں بھی علم ہو. جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا مشورہ ہے. امید ہے کہ ہماری مجلس اسے نوٹ کر لے گی. جناب چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. چکوال والوں سے پہلا سوال کریں گے. ایک ایسی حدیث جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سلام کے بارے میں آپ نے اس میں کچھ رہنمائی فرمائی ہے. حدیث بھی عربی میں بھی سنائیں گے آپ، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے اور کتاب کا نام بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلامی، یعنی سلام گفتگو سے پہلے. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. میرے پاس جو کتاب لکھی ہوئی ہے آپ کے سلیبس میں، جامع ترمذی، جی وہ ترمذی ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے جناب، السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے پہلے. لوگ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، سلام ہی نہیں کرتے. تو آج چلیں سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نے ہر گفتگو سے پہلے سلام کرنا ہے انشاءاللہ. جناب جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے اوکاڑا والوں سے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حج کی بات ہو رہی ہے، کسی نماز کی بات بھی ہو رہی ہے اور اس حدیث کو آپ نے سنانا ہے، اس کا حوالہ بھی دینا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ مسکینوں کے لیے وہ حج ہے. الفردوس بماثور الخطاب، یہ کتاب کا نام ہے. الجمعۃ حج المساکین، جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں جمعے کی پابندی بھی کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے. بالخصوص وہ غریب لوگ جو حج پہ نہیں جا سکتے، آقا نے فرمایا کہ جمعہ تو ان کا حج ہے. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے ہمارے چکوال والوں کی، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ نے یہاں بھی سلام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، نبی پاک کی حدیث کی روایت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث بھی سنانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے، کتاب بھی بتانی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلامی بری من الکبری، یعنی سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. کیا بات ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے. جس کو جانے نہ جانے سلام کریں، سلام میں پہل کریں. جواب درست دے دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہاں پر خوشخبری سنانے والی بات کی گئی ہے. حدیث سنائیے، ترجمہ بھی سنائیے، کتاب بھی بتائیے. بڑی خوبصورت حدیث، ون آف دا بیوٹیفل حدیث، بہت پسند ہے مجھے یہ حدیث. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشرو ولا تنفرو، کہ خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلا. یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم خوشخبریاں دینے والے، اچھی باتیں کرنے والے، حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی دونوں ٹیموں کے ڈبل 12 نمبر ہیں، 24 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور وہ سیگمنٹ نیا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا دل کے قریب ہے، اور اس کا نام یہ ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا عبادت ہے،
इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। चलिए जनाब, बहुत सारे लोगों की आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यार ये नात क्यों पढ़ते हो? अरे भाई कुरान सही पढ़ना सीख जाओ। देखो कुरान में रब ने महबूब पाक की कैसे शान बयान की है। कुरान तो ऐसा है कि पढ़ते जाओ तो नाते मुस्तफ़ा सुनने को मिलती है। आज इसको इंशाअल्लाह प्रूफ भी करेंगे, हवाले के साथ हमें बताएंगे हमारे इस्लामी भाई। ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद फुरकान हमीद में साहिब मेराज कहाँ फरमाया गया है? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा। तकरीबन 5 सेकंड रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा, और पाकिया उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनता देखता है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में मेराज के वाक़े को किस शान से बयान किया गया? जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ओकाड़ा वालों की बारी है। ये बताइए कुरान मजीद में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद कहाँ फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएंगे। सुन भी ना सके अगरच देख ना सके, अगरच सुन भी ना सके, मगर शुक्र है दिल में नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल के रसूल हैं और तमाम नबियों से आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, यानी खातमुन नबिय्यीन हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40। क्या बात है, नामे मोहम्मद का भी जिक्र है, खातमुन नबिय्यीन होने का भी जिक्र है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बताइए कुरान मजीद में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहाँ फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत बयान कीजिए। फिर से ये शुरू हुआ, लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले, लो फिर से ज़हनी आज़माइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरतुल अंबिया। सूरह अंबिया और आयत नंबर 107। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने का तज़किरा कहाँ फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। सीना मुबारक का जिक्र खैर कुरान में कहाँ है? सूरत अलम नशरह आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। क्या ए महबूब, क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा ना किया? सूरह अलम नशरह आयत नंबर 1 में क्या खूबसूरत अंदाज कुरान का इख्तियार किया गया? अलम नशरह लका सदरक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर हम क्यों ना कहें जो पंजाबी शायर ने लिखा कि दस्सा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच साराई कुरान है, आप दी तारीफ विच साराई कुरान है, पढ़ के तू वे जेड़ा मर्जी से पारा, पढ़ के तू वे जेड़ा मर्जी से पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। चले जरा, क्या बात है, कुरान मजीद से नाते सुनने का मौका मिल रहा है। सेगमेंट ये भी कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और उसके बाद हम इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी
मैं मोहम्मद एहसानुल्लाह दुनिया पोर्ट से बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अब्दुल हबीब भाई आप खैरियत से होंगे। मेरा मशवरा है कि माँ बाप का अदब का सेगमेंट ले आए। चलें भाई, माँ बाप के अदब का सेगमेंट ले आए। वैसे तो आज ही हमारे सिलसिले के सवाल जवाब में हम शामिल किया हमने वालिदैन के हवाले से, लेकिन ये गुफ्तगू मजीद भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब 28-28 नंबर दोनों के साथ साथ चल रहे हैं। अब सेगमेंट शायद फर्क डाल दे, क्योंकि अब तक तो इस सेगमेंट ने दोनों टीमों में फर्क डाला है। सेगमेंट का नाम है जाने और पहचाने। चकवाल वालों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बात और भी समझनी है कि दो आप लोगों का सेगमेंट होंगे, लेकिन इन चारों बॉक्सों में एक आप सेगमेंट ले सकेंगे। जो आप सेगमेंट लेंगे अब दोबारा आप वो नहीं ले सकेंगे, ये ख्याल रखेंगे। अगली बार आपने वो दूसरी बारी में कोई और चीज़ लेनी होगी। अगर किताब पसंद की है तो अगली बारी में शख्सियत, मकाम या कोई शय पसंद करनी होगी। आइए चकवाल वालों की बारी है जी। ये उम्मते रसूल शख्सियत। शख्सियत जनाब। ठीक है। क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? ला नहीं। क्या वो सहाबा इकराम में से? ला नहीं। क्या वो अंबिया इकराम में से? जी हाँ। 3 सवाल हो गए। क्या वो उलुल अज़्म अंबिया में से हैं? जी नहीं। 4 सवाल हो गए। सवाल 4 हो गए हैं। और क्या उनका ताल्लुक चोंटी के वाक़े के साथ है? जी नहीं। 5 सवाल हो गए हैं। अब हर सवाल पर नंबर कम होते जा रहे हैं। क्या वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दादा हैं? नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वो दादा नहीं है। 2 सवाल बाकी रह गए हैं। क्या उन पर कोई किताब नाजिल हुई? नहीं। जो 4 मशहूर किताबें उनमें से कोई किताब उन पर नाजिल नहीं हुई। 7 सवाल हो गए। अब मैं आपको इशारा दे देता हूं। वो कौमे मदियन पर उनको भेजा गया था। अब आप चाहें तो सवाल कर लें, चाहे तो नाम ले लें। अहले मदियन पर उन्हें भेजा गया था। वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर मिलेंगे इन्हें जनाब। अब बारी है उकाड़ा वालों की। कौन सा सेगमेंट पसंद करेंगे? किताब। किताब चले जनाब। ओके। क्या वो फ़िक़्ह तफसीर में से किसी मौजू पर है? नहीं। क्या वो आसमानी किताबों में से है? ला नहीं। क्या वो फ़ज़ाइल और सीरत में से किसी मौजू पर है? ला नहीं। क्या वो हदीस और तसव्वुफ में से किसी मौजू पर है? ला नहीं। क्या वो कोई नातिया दीवान है? जी हाँ। क्या वो आला हजरत का नातिया दीवान है? नहीं।
जी 6 सवाल हो चुके हैं। नातिया दीवान तो बहुत सारे हैं मार्केट में। जल्दी करें। क्या वो मौलाना हसन रजा खान ने लिखी? ला नहीं। 7 सवाल हो गए? हो गए। क्या इशारा दूं? इशारा तो ऐसा है कि आप फौरन पहुंच जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत का उस नातिया दीवान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वसाइले बख्शिश। वसाइले बख्शिश जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2-2 नंबर हो गए जनाब। फिर बारी है चकवाल वालों की। अब कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मकाम। मकाम सेलेक्ट करेंगे जनाब। चलें जनाब, मकाम हो गया। क्या उसका ताल्लुक हज उम्र की उम्र में से? देखिए, एक होता है कि जहां पर हज और उम्रे में जाना जरूरी होता है, ये मुराद है आपकी, या अरकान हज मुराद है? क्या मुराद है? इससे सवाल को जरा वाज़ेह करें। अरकान हज। अरकान हज से बाकायदा उसका ताल्लुक तो कह सकते हैं, ताल्लुक है। क्या वो मकाम मक्कातुल मुकर्रमा में? जी हाँ। जल्दी करें, 2 सेकंड रह गए। सवाल करें वरना टाइम। क्या उनका ताल्लुक हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से है? उस मकाम का ताल्लुक खास हजरत हाजरा के साथ नहीं है। सफ़ा मरवा नहीं है। तीन सवाल हो गए। क्या वो मकाम काबतुल्लाह शरीफ के करीब है? जी हाँ। 4 सवाल हो गए हैं। क्या उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक है उस मकाम का? देखिए, यूँ तो मक्का पाक के चप्पे चप्पे का उनसे ताल्लुक है, लेकिन ख़ास जो ताल्लुक आप मकाम इब्राहीम की तरफ इशारा कर रहे हैं वैसे वो नहीं है। 5। याद रहे, ये मकाम है, बाकायदा कोई मकाम है। क्या वो तवाफ के साथ मखसूस है? जी, उसको तवाफ से तो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मैं जवाब तो ये दूंगा, लेकिन शायद आप जिस तरफ जा रहे हैं ये वो नहीं है। बहरहाल तवाफ से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 6 सवाल हो गए। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अल्लाह करे कि आप जल्दी जल्दी मक्का पाक पहुँचें और काबे को बहुत करीब से देखें, तवाफ़ करें, तो शायद चीज़ें नज़र में आ जाएंगी। देखिए नाजरीन, आप भी पहुंच रहे होंगे, अपने आपस में ज़रा घर में भी पहचाने ना, ये कौन सा मकाम है जिसका तवाफ़ से भी गहरा ताल्लुक है, मक्के से भी, काबे से भी बड़ा करीब है। क्या वो हा से शुरू होता है? हा से? हा जी, हा से शुरू होता है। हा से शुरू होता है जी। 7 सवाल हो गए हैं। इशारा भी चाहिए। आला हज़रत का एक शेर है, इशारे में आपको वो पढ़ देता हूँ, उसकी दूसरी लाइन पढ़ देता हूँ। अगर आपको उसकी पहली लाइन याद होगी तो ये नाम आ जाएगा। जिन पे माँ बाप फिदा
वहाँ करम उनका देखो। अगर इसका पहली लाइन आपको याद है तो उस पहली लाइन में इस मकाम का जिक्र भी है। हजरे हतीम, एक्चुअली हजरे हतीम नहीं है, हतीम, मकाम हतीम। अच्छा, हतीम पता ही क्या है? हतीम एक्चुअली तो काबा ही है। जो हतीम में गया वो ऐसा ही है जो काबे में गया। अच्छा, अब तवाफ से गहरा ताल्लुक मैंने इसलिए कहा कि तवाफ उसके गिर्द होता है, उसके अंदर से नहीं होता। तो बहरहाल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको हतीम की भी ज़ियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पकाड़ा वालों की बारी है। अब आपके पास तो एक ही ऑप्शन रह गया है। इनको भी 2 नंबर मिले हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, मुकद्दस कोई चीज़ होगी। क्या उस चीज़ का अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है? उसकी वजह शोहरत अंबिया का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मक्के मदीने या मुकद्दस मकामात पर जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ अंबिया का जाना तो होता है, लेकिन वो अंबिया कराम की कोई इस्तेमाल की चीज़ कहें या उनके साथ की चीज़ें, वो नहीं है। जनाब 4 सेकंड रह गए हैं। क्या वो कुतुब में से उसका किताब में से वो है? नहीं, वो तो किताब का तो ऑप्शन अलग था ना, ये तो किताब हो नहीं सकती ना। अगर हम किताब होती तो हम किताब के ऑप्शन में उसको रखते ना। आपका सवाल दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोबारा सवाल कर लें। क्या उसका जिक्र कुरान पाक में है? उसका जिक्र कुरान पाक में नहीं है। 2 सवाल हो गए। वो कोई शय है, याद रखना है। क्या उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया? बोसा देना तो साबित नहीं है। 3 5 सेकंड रह गए। क्या उस शाह का ताल्लुक किसी अंबिया नबी से है? बेटा, ये सवाल तो आप कर चुके हैं। पहला सवाल ही आपने ये किया था और आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए आपका ये सवाल चला गया। 4 सवाल हो गए। चलें, आप सवाल 5वां करेंगे। और नबी से ताल्लुक नहीं है, ये मैं जवाब दे चुका हूं। ताल्लुक नहीं है ना, पहले भी कह चुका हूं। तो और जल्दी करें। क्या उसका ताल्लुक औलिया किराम से है? देखिए, किसी वली के इस्तेमाल की वो चीज़ नहीं है जिसको कहें कि उनका वो कोई ऐसा खास ताल्लुक है, ऐसा नहीं। 5 सवाल हो गए। हालांकि बड़ी मशहूर और मारूफ चीज़ है और थोड़े दिनों पहले ही मदनी चैनल पर जिक्र भी हुआ था। 5 सवाल हो गए। क्या वो कोई पानी है? नहीं, वो पानी नहीं है। 6 हो गए। नाज़रीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जाने और पहचाने। सात सेकंड रह गए। चलें जनाब, वैसे ही वक्त ख़त्म हो गया क्योंकि सवाल नहीं बच रहे। 7 सवाल हो गए। मैं इशारा दे देता हूँ और आला हज़रत के शेर ही से इशारा देता हूँ। आब रहमत का वहाँ जोश बरसना देखो। इससे पहले वाली लाइन में इस शय का नाम मौजूद है। आब रहमत का यहाँ जोश बरसना देखो। वो मीज़ाब रहमत है जनाब। काबे के ऊपर सोने का परनाला, मीज़ाब रहमत। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अल्लाह मीज़ाब रहमत, हतीब पाक सब हमें देखना नसीब फरमाए। नाजरीन, दोनों टीमों ने इस बार तो कमाल किया है कि ये सेगमेंट के बाद भी इनमें फ़र्क नहीं आया है, तो पता नहीं मुकाबला आगे कैसे जाएगा। आइए चलते हैं जनाब, वक्त हुआ है, कुछ नाज शरीफ सुनेंगे, नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे। आज माशाल्लाह सोबान भाई भी हमारे साथ हैं, उनका भी सेगमेंट होगा। आइए दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ ले आए। जी, नेक अमाल वाले इस्लामी भाई हमें नेक अमाल का जायज़ा भी करवाएं। थोड़ा सा वहाँ से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नंबर 1, अच्छी नीयत की। 2, पांचों नमाजें बाजमात अदा की। 3, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी। 4, रात में सूरह मुल्क पढ़ के सुन ली। 5, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी। 6, कंजुल ईमान से 3 आयत या सिरातुल जनान से 2 सफ़हात तर्जमा और तफसीर पढ़ या सुन लिए। 7, शजरे के औरात पढ़े। 8, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। 9, आँखों को गुनाहों से बचाया। 10, कानों को गुनाहों से बचाया। 11, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीचे रखी। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। 13, अज़ान व इक़ामत का जवाब दिया। 14, गुस्से का इलाज किया। 15, अपना जायज़ा लिया। 16, अपने निगरान की इताअत की। 17, आप और जी कहकर बात की। 18, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया। 19, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 20, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए। 21, फज्र में जगाया। 22, दूसरों के घरों में झांकने से बचे। 23, घर दर्ज हुआ। 24, मस्जिद दर्ज दिया या सुना। 25, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। 26, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल किया। 27, एक मुश्त दाढ़ी रखी। 28, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की। 29, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। 30, मुसलमानों को सलाम किया। 31, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया। 32, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज़ से पहला अदा की। 33, तहज्जुद के सलातुल लैल पढ़ी। 34, अव्वाबीनो इशराक़ो चाश्त पढ़ी। 35, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी। 36, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई। 37, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की। 38, झूठ गीबत और चुगली से बचे। 39, कुछ ना कुछ वक्त के लिए मदनी चैनल देखा। 41, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया। 42, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद ना करे। 43, सफाई और सलीक़े का ख्याल रखा। 44, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की। 45, तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की। 46, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। 47, चौक दर्स दिया या सुना। 48, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को ईसाल सवाब किया। 49, इसराफ से बचे। 50, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। 51, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया। 52, ज़बान को गुनाहों से बचाया। 53, फजूल बातों से बचे। 54, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहकहा लगाने से बचे। 55, इमामा शरीफ बांधा। 56, माँ बाप का अदब किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी नेक अमाल पर हमें रुकन शूरा भी हमारी तरबियत फरमाते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारी किस मौजू पर तरबियत हो रही है। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे नेक अमाल जो 72 हैं इस्लामी भाइयों के लिए, उसमें नेक अमाल नंबर 4 वो ये है कि क्या आज आपने रात में सूरह मुल्क पढ़ ली या सुन ली। सूरह मुल्क के बहुत फ़ज़ाइल हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 29वें पारे की पहली सूरत है। 30 आयतें हैं, पढ़ना बहुत आसान है। अगर महीने की पहली तारीख़ यानी पहली रात, चांद रात को अगर ये पढ़ी जाएगी तो इंशाअल्लाह पूरा महीना सख्तियों से पढ़ने वाला अमन में रहेगा। ये वो सूरत है जो अज़ाब क़ब्र से बचाती है। इसका पढ़ने वाला यानी सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला जब कब्र में जाएगा और कब्र सिरहाने की तरफ से आएगा, पाँव की तरफ से आएगा, दाएं बाएं आएगा, ये सूरत इंशाअल्लाह रहमान उसको बचाएगी, अज़ाब क़ब्र दूर करेगी। यहाँ तक कि सूरह मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में
اس پڑھنے والے قاری کے لیے شفاعت کرے گی، جھگڑا کرے گی اور اس کو جنت میں داخل کر دے گی. اس کی شفاعت رب العالمین قبول فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے سینے میں ہو. تو آپ اس کو روزانہ رات کو تلاوت کیجئے، انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بھی پورا کیجئے اور سورہ ملک آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ کے سینے میں آ جائے گی. اور انشاءاللہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کے لیے امن ہی امن، عافیت ہی عافیت ہوگی اس دنیا میں اور آخرت میں. تو اس نمبر 4 پر روزانہ عمل کریں، نیک اعمال پر. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ذرا آپ نیت کریں کہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کون سا کلام سننا ہے؟ نعت خواں اسلام بھائی ساتھ ہیں، آئیے نعت رسول میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں صحیح. پیارے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، مدینے مجھ کو بلا لے، مدینے مجھ کو بلا لے. بہت اداس سے 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 ہمیں جہاں سے بچا لے. آقا ہمیں جہاں سے بچا لے. آقا ہمیں جہاں سے بچا لے. بہت اداس سے ہمیں جہاں سے بچا لے. بہت اداس سے کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم
جنہیں بھلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مہینے کو جا رہے ہیں منو شام شادی میں میرے دل
हूँ मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, आका जल्दी बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, मेरा सवाल निभा ले, बहुत उदास हूँ मैं। आज ही तो हमने नबी पाक का ये फरमान सीखा, बशिरू वला तुनफ़िरू, खुशखबरी सुनाओ और नफरत ना फैलाओ। हुजूर आपका ही तो फरमान है, हमें भी खुशखबरी अता कर दीजिए, हमें भी बिशारत अता कर दीजिए। मदीने हाज़री का शरफ और बुलावा आपने अता करना है हुजूर, निगाह फरमाइए। मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। आपकी नज़र होगी तो हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी, हमारी भी किस्मत चमक जाएगी। हुजूर काबिल तो नहीं, मानते हैं गुनाह बहुत है, ना ज़ादे सफ़र है, ना कोई काम भले, फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या। जिनके दिल मदीने की तरफ खिंच रहे हैं, हुजूर करम कीजिए, हमें भी जल्दी जल्दी मदीने की हाज़री का शरफ अता हो जाए, हमें भी आपके दर की हाज़री का शरफ अता हो। और अल्लाह करे कि ये शौक़ मदीना बढ़ता रहे, ये इश्क़ मदीना बढ़ता रहे। अल्लाह मुझे और आपको इखलास के साथ याद रसूल में रहने वाली आँखें भी नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, मुकाबले को हमें आगे लेके चलना है। मौजू और कलाम तो ऐसा है कि वाकई दिल की जो उदासी है वो और बढ़ गई है, क्योंकि सच्ची बात यही है, सारी खुशियाँ मदीने में हैं। मदीने, ज़िंदगी का मज़ा भी मदीने में है। वो शायर कहते हैं ना, गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, ज़िंदगी चाहिए तो मदीने चलो, क्योंकि सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। बस अल्लाह ये खुशियाँ बार बार हमें नसीब फरमाए, हमें कभी भी मदीना तैयबा से महरूम न रखे। और जब मदीने से दूर हों तो मदीने वाले का काम कर रहे हों, आका की याद में ज़िंदगी गुजर रही हो, ताकि जब जाएं आका की बारगाह में तो आका की रज़ा वाली हाज़री हम सबको नसीब हो जाए। आइए इंशाल्लाह हमारे आज सोबान भाई भी हमारे साथ हैं, कुछ हमें इंशाल्लाह मदनी फूल भी अता फरमाएंगे। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक यकीनन हमने आदमी को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। ह्यूमन बॉडी मैग्निफिसेंट एंड मास्टरपीस क्रिएशन। इंसानी जिस्म बेहतरीन और हैरत अंगेज़ तख्लीक है। ये देखिए, ये 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। अंगूठा उंगलियों से दूर है और ये 360 डिग्री पर रोटेट करता है, ये घूम सकता है। अगर इस अंगूठे को हम बांध दें, ये इस अंगूठे को मैंने कैद कर दिया। अब देखिए इन उंगलियों का और हाथ का क्या काम है। इससे ही मैं कप उठाऊँ कितना मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर का माउस, बटन, तस्मे, ये एक रबर बैंड, ये एक पेन भी उठाना कितना मुश्किल है। तो सूरह रहमान के अंदर आया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और ये देखिए इन उंगलियों को इंसान किस तरह ट्रेन कर लेता है, किस तरह तरबियत दे लेता है। इन्हीं उंगलियों से कितने ज़बरदस्त ऑपरेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें इंसान हैंडल करता है। और अगर इन्हीं उंगलियों में पेन आ जाए, कलम आ जाए, तो फिर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की उंगलियां, अमीर अहले सुन्नत की उंगली मुबारक, कैसे कैसे शाहकार इससे आते हैं। और असल में इंसान के जिस्म का जो मेन उज़ है वो गर्दन से ऊपर है। देखिए आँख 574 मेगापिक्सल पर काम करती है। इंसान की आंख एक दिन में 10,000 मरतबा इंसान इसे झपकता है। और जितनी भी लर्निंग होती है, जितना हम कुछ सीखते हैं, उसका 75% आंख के जरिए होता है। और इंसान की आंख 10 लाख रंगों में फर्क कर सकती है। और नाक को देखिए, नाक से इंसान सांस लेता है। एक दिन में 11,000 लीटर हवा हम जिस्म में लेके जाते हैं, जिसमें से 2200 लीटर वो ऑक्सीजन होती है। और फिर पूरे जिस्म के 37 ट्रिलियन खलिए, 37 खरब खलिए जो सेल्स हैं, उन तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। यानी गैसों को अलग अलग करने का निज़ाम और एक एक खलिए तक पहुंचने की ट्रांसपोर्ट। और यहाँ ये बात याद रखिएगा, सांस जो हम लेते हैं वो नाक से लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नाक से जब सांस जाता है फेफड़े खूब फूलते हैं और जरासीम वगैरह भी फिल्टर होते रहते हैं, जबकि मुंह से सांस लेने से मुंह में बदबू आ जाती है। और ये ज़बान, इसमें 10,000 टेस्ट बड्स हैं। जो हमने चीज़ खाई वो सॉल्टी थी, सेवरी थी, सौर थी, खट्टी थी, मीठी थी, ये सब
زبان ہمیں بتاتی ہے. زبان کھانے کو تھوک کے ساتھ مکس کرتی ہے, کھانے کو پیچھے دھکیلتی ہے اور الفاظ کو ادا کرنے میں مدد دیتی ہے. اور کان دیکھیے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی ہے, 2 ملی میٹر اتنی سی, اسٹیپس کہتے ہیں اس کو. اگر وہ ڈیمیج ہو جائے انسان صحیح سن بھی نہیں پائے گا اور اس کا بیلنس بھی قائم نہیں رہے گا. دیکھیے انسان کے چہرے پر کیسی کیسی شاہکار آرگنز ہیں, اور یہ دماغ یہ تو بڑی سے بڑی مشین سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے نماز کے دوران, اسی شاہکار چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کبریائی کا اقرار بھی کرتا ہے, ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ یہ چہرہ جس پہ انسان اتنا اتراتا ہے, اور یہ مکھڑا جس کو سجانے کے لیے آج $534 بلین کی کاسمیٹک انڈسٹری ہے. اور ایک نماز کے اندر اگر پورے دن کی نمازوں کا حساب لگائیں 96 سجدے بنتے ہیں. اور پھر یہ نعمتیں, اور ادھر ادھر دیکھیے نباتات, جمادات, اور یہ سورج, چاند, ستارے, یہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں. تو انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ What is our motive? پرائمری سکسیس سیکرٹ, ہمارا گول کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں, ٹو ورشپ اللہ. اور جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا, ان کے ساتھ نیکیاں کرنا, اثار, صبر, سخاوت, عاجزی, حسن اخلاق. یاد رکھیے اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے, اور جو اس امت کی فکر پالتا ہے, خیر خواہی کی کوشش کرتا ہے, وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے خوشیاں ڈھونڈنے سے نہیں, خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں. ایسی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے میرے اہل سنت کا, اس میں ضرور حاضری دیا کریں. اور ہمارا یہ پروگرام ذہنی آزمائش, جس کا ایک ایک لمحہ علم دین سے بھرا ہے. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں ہمیں صوبان بھائی نے بتائیں. اب ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں, امیر اہل سنت کی آنکھوں کے تارے, امیر اہل سنت کے مبارک پوتے حاجی اسید رضا نے ہمارے لیے کوئی ویڈیو پیغام ذہنی آزمائش والوں کے لیے بھیجا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اصل کامیاب ہونا آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. اللہ پاک ہم سب سے راضی رہے. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین, آخری 2 سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کر دیں گے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے سب سے پہلے. جناب چکوال والوں سے سوال ہے, سب سے پہلے خرید کس نے بنایا؟ سب سے پہلے سرید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کون تشریف لائے؟ مصعب بن عمیر سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست دے دیا ہے. قبر میں انسانی اعضاء میں سب سے پہلے کیا چیز بدبودار ہوگی؟ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی سختی اور عذاب سے محفوظ فرمائے. قبر کے عذاب میں سب سے پہلے پیٹ بدبودار ہوگا. قبر میں انسانی اعضاء میں سب سے پہلے پیٹ بدبودار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. قیامت کی علامات کبریٰ بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوگی؟ بڑی قیامت کی نشانیوں میں, قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا. سورج جو ہے جو آج ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں غروب ہوتا ہے, مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ. جناب 36 نمبر ہے, آخری سیگمنٹ جو فیصلہ کر دے گا کس ٹیم نے آگے جانا ہے. نام ہے اس سیگمنٹ کا سفر ہے مگر اکیلے.
जनाब ये सेगमेंट शुरू करते हैं। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर इस्लाम में खड़े हो जाएंगे, किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं है। शायद ये ज़हनी आजमाइश में पहली बार हुआ है कि हम आखिरी सेगमेंट में पहुंचे हैं मगर दोनों टीमों के नंबर बराबर है, यानी यही वो डिसाइडिंग सेगमेंट होगा जो फैसला करेगा कि चकवाल या उकाड़ा कौन सी टीम आगे जानी है। जनाब हाफिज साहब से सवाल करेंगे, सजील अहमद भाई से, आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पीर साहब शाह आले रसूल है। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं। दुरुस्त। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार नहीं पढ़ा जाता। दुरुस्त। सफा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। दुरुस्त। जनाब वैसे सही कहा करें या गलत कहा करें, 2 गलतियां कर गए हैं शुरू में, 3 नंबर हासिल किए हैं हाफिज साहब ने। अब बारी है उकाड़ा वालों की। शायद पहली बार इस पूरे प्रोग्राम में कोई टीम आगे बढ़ सकती है। मुज़क्किर भाई की बारी है। मौलाना हसन रजा आला हजरत के भाई हैं। सही। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। हर जायज काम से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। गलत। ज़हनी आजमाइश का सीजन 8 जारी है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है फिर चकवाल वालों की। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुतम्मिमुल अर्बईन हैं। दुरुस्त। हजरत उस्मान गनी को जुल हिजरतैन कहा जाता है। दुरुस्त। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 नाम मोहम्मद और अहमद बहुत मशहूर हैं। दुरुस्त। फिक और हदीस में उम्महातुल मोमिनीन में सबसे बुलंद दर्जा हजरत आयशा को हासिल है। दुरुस्त। अबू तुराब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत है। दुरुस्त। जनाब 5 दुरुस्त और बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 5 के 5 नंबर ले लिए हैं। साकिब रजा तारी भाई है जनाब। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब फारूक भी है। गलत। दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में वाक़ है। सही। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हैदर भी है। सही। ज़ुन्नूरैन हजरत अली का लक़ब नहीं है। सही। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की मशहूर किताब है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। 2 इस्लामी भाई बाकी हैं और 2 नंबर का फर्क भी है। चकवाल वाले 2 नंबर से पीछे हैं। अब देखना है मुकाबला चकवाल वाले ले जाते हैं या उकाड़ा वाले। बारी है चकवाल वालों की। जनाब नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वकूफ अरफा हज का रुकन आजम है। सही। ज़बीउल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। जमरात यानी शैतानों पर कंकरियां मारने को रमी कहते हैं। सही। कुरान पाक के 30 पारे हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। चकवाल वालों ने अपनी काम तो पूरा कर लिया है। अब बारी है उकाड़ा वालों की। अगर 4 सही जवाब ये दे देते हैं तो मुकाबला जीत जाएंगे। 2 गलतियां करते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा और अगर 3 गलतियां करते हैं फिर जाके बारी आएगी चकवाल वालों की। अब उकाड़ा के इस्लामी भाई पानी पी ले, कोई बात नहीं। जनाब आखिरी इस्लामी भाई हैं, सारा बर्डन जो है इनके कांधों पर है, फैसला हो जाना है जनाब। अब जनाब सवाल ये है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। सही। आला हजरत की तारीख विसाल 26 सफरुल मुजफ्फर है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाएगा उस पे बरकत न होगी। गलत। बाहर शरीयत के कुल 30 हिस्से हैं। गलत। इमाम आजम के वालिद का नाम सैयदुना साबित है। सही। अल्लाह अकबर। जनाब इन्होंने 2 गलतियां कर दी हैं और मुकाबला बराबर हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जनाब वैसे ही आज मुकाबला लेट हो गया था, मैंने सोचा अब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा क्योंकि हमें फैसला करना होता है किस टीम को आगे ले जाना है। चलें पहले तो आप सारे स्लैब में बारी बारी अपनी जगह पर आ जाएं ताकि आपकी टीम के साथ आप हो जाएं और अब हमें कुछ और नया सोचना पड़ेगा कि इस फैसले को, इस मुकाबले को कैसे किनारे लगाया जाए, कैसे जनाब पूरा किया जाए। तो अब इन दोनों टीमों के चूंकि नंबर बराबर हैं तो अब इस नंबर को हमने किसी किनारे पर पहुंचाना है। तो बेहतर यह है कि दोनों टीमों से सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के कलाम के मक्ते सुने जाएं। तो अब बारी बारी ये मक्ते सुनाते जाएंगे। जहां
कोई एक टीम खामोश हो जाएगी तो अब उसकी वो दूसरी टीम जो है वो आगे बढ़ जाएगी। इस बहाने हम इंशाल्लाह कुछ नाज शरीफ भी सुनते रहेंगे। पहली बारी चकवाल वालों की है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा तूफान महशर के तला तुमसे न डर, शाद हो है किश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियां। शाद हो है किश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बस खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इसराह पर आ जाना। नाचार इसराह पर आ जाना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज मुकाबले का फैसला भी हो ही जाएगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर था, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। रज़ाए खस्ता जोश बहर इसियां से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। जब नबी मुश्किल कुशा हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा जो तेरा। मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा खुद साहिबे कुरान मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रजा, जीत जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा, तेरा ही तो बंदा है दरगाह ले खबर। तेरा ही तो है बंदाए दरगाह ले खबर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाएं, दौलते बीदार इश्के मुस्तफ़ा का साथ। दौलते बेदार इश्के मुस्तफ़ा का साथ हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाथ उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब रजा भी कोई हिसाब में है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जान दिल होश और हिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान तुम गया। नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बि सल्लिम सदाए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है तो रजा नेरा सितम, जुर्म पर गढ़ लजाए हम, कोई बजाए सोजे हम साजे तरफ बजाए क्यों। साजे तरफ बजाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बड़ा जबरदस्त जवाब चल रहा है, आप कुछ रुका कुछ ठहराव आया है। नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमतों के वहाँ बटे, जो खास रहमत के वहाँ बटे थे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब दोनों टीमें जबरदस्त। नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए। ये हो गया, ये शेर हो गया। सेकंड सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा कली। हो गया, ये शेर हो गया। जनाब अगर चकवाल वाले नहीं सुना सकेंगे तो फिर उकाड़ा वालों को सुनाना पड़ेगा, तब ये जीतेंगे, क्योंकि स्टार्ट यहां से हुआ था, ये भी याद रहे। और अगर ये दोनों नहीं सुना सकेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए जनाब 8 सेकंड रह गए। जनाब वक्त यहाँ तो खत्म हो गया है, क्या सुनाएंगे। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। ओकाड़ा वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह
नुमाइश है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये दोनों टीमें आज की विनर हैं। बड़ा शानदार मुकाबला, आखिरी सवाल तक नहीं पता चल पा रहा था कि कौन आगे जाएंगे। चकवाल वाले दिल छोटा ना करें, अभी और मुकाबले बाकी हैं, आपको फिर मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। पहले देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की क्या राय थी, ओकाड़ा या चकवाल। जरा बताइएगा एप्लीकेशन पर लोग क्या कह रहे थे, कौन सी टीम आगे जाएगी। चकवाल 34%, ओकाड़ा 65%, और ऐसा ही हुआ जो ओकाड़ा वाले आगे बढ़ गए हैं। और ओकाड़ा के मुज़क्किर भाई को आज हम परफॉर्मर ऑफ द डे का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अल्लाह इनको तरक्की दे। और माशाल्लाह इस्लाम भाई सबकी तैयारी बड़ी शानदार थी। आज मेरे हिसाब से दोनों टीमें विनर हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि एक ही टीम को हम आगे ले जा सकते हैं। आइए अदब व शौक़ के साथ खड़े हो जाएं और सलातो सलाम में शामिल हो जाएं। मेरे शफ़ीए महशर तुम पर सलाम मरदम, तुम पर सलाम मरदम, तुम पर सलाम मरदम। इस बेकसों गुजर रही है, इस बेकसों पर जो कुछ गुजर रही है, ज़ाहिर है सब तुम पर, ज़ाहिर है सब तुम पर, तुम पर सलाम अपने खबर खुदारा, अपने खबर खुदारा, कीजिए करम हसन तुम पर सलाम तुम पर सलाम तुम पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। अस्सलामु अलैकुम। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले।